of an object, certain variables or certain parameters are there which are known as motion parameters. And motion parameters are classified into 5 categories. First motion parameter is distance, second is displacement, third is speed, fourth one is velocity, and fifth one is acceleration. These 5 variables describe the motion of an object. So one by one we are discussing these motion parameters: distance, displacement, speed, velocity, and an acceleration. So first point, distance. So how can we define a distance of an object? It is equal to actual path length traversed by the object in any direction in given interval of time. It is equal to the actual path length traversed by the object in any direction in the given interval of time. That is called its distance. Basically, it is a length of the path traversed by the object. It is one of the kind of length. So its SI unit is meter. And one of the important characteristics about this quantity is it is a scalar quantity. Now, what is a scalar quantity? A physical quantity which required an only magnitude for its representation. मतलब किसी भी physical quantity को express करने के लिए simply हमें क्या चाहिए? उसका magnitude चाहिए. Then that physical quantity is called scalar quantity. And one another kind of quantity of this kind is a vector quantity. So what is a vector quantity? Those physical quantity which required magnitude as well as direction for their representation are called vector quantity. मतलब जिनके रिप्रेजेंटेशन के लिए सिंपली आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए उनको एक्सप्रेस करने के लिए, उनको डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो क्वांटिटीज कैसी होंगी? स्केलर. और जिनको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड, देन दोज फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज. सो डिस्टेंस इज योर स्केलर क्वांटिटी. इस सेक्शन को स्केलर और वेक्टर को हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के बाद. फर्स्ट विल डिस्कस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो व्हाट इज डिस्टेंस एंड नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? सो डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. How can we define a displacement? It is a shortest path between initial and final position of an object is called displacement. Shortest distance or shortest path between initial and final. Object की initial position क्या है, उसकी final position क्या है, उसके बीच का जो direct distance होगा, that direct distance is called displacement. Now it is again a path length. So इसका भी ऐसा unit क्या होगा आपका? इसका भी ऐसा यूनिट आपका क्या रहेगा? मीटर. बट इट इज वन ऑफ द काइंड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी. नाउ टू अंडरस्टैंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, नाउ वी आर टेकिंग एन एग्जांपल. नाउ वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन. जैसे सपोज
object is traveling along a straight line path, suppose over a x dash axis, ठीक है. Initially it is at origin, इनिशियल ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पर है, ये हम ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, that distance is in meter. At t is equals to 0, object is at origin. After the 5 second, it will be reaches at point A. Now this is the location of point A. And after the 10 second, this is -10, -20, -30. It will be reaches to the point B by traversing a distance along a straight line path. इसी straight line path पे ही travel कर रहा है. Initially it is at origin. After the 5 second, it will be reaches to the point A by traveling a distance of 40 meter. And again after the 5 second means at t is equals to 10 second, it will be reaches to point B. From A to B, it also travels a path, this straight line path. So my question is, calculate distance and displacement of an object in 5 seconds and in 10 seconds. So first we calculate the distance and displacement in a 5 second. So distance, as we know, that actual path length travel by object in any direction. तो t is equals to 0 पर ऑब्जेक्ट origin पे है और 5 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया? A पर. So distance is 10, 20, 30 and 40. So distance in 5 meter is 40. Now to check the displacement, we just first check out its initial and final position in the first 5 seconds. तो first 5 seconds में ये इसकी initial position है और this is its final position. ये इसकी initial position है, ये इसकी final position है, and the direct distance between initial and final position is this 40 meter. So displacement is again 40 meter along positive x-axis. अब देखिए यहां मैंने डिस्टेंस के लिए कोई भी डायरेक्शन एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मेंशन करी है. सो डिस्प्लेसमेंट इज 40 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस. नाउ वी कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड. सो इन 10 सेकेंड व्हाट विल हैपन? 10 सेकंड में इनिशियली 0 पर यहाँ है, 40 मीटर यहाँ गया, अगेन रिवर्ट बैक टू द ओरिजिन, 40 and 40, 80 and it will be travel again 30 meter to reach at the point B. So 40, 40, 80 and 30, that will be 110. So in 10 second distance कितना हुआ? 40 plus 40 plus 30, that is 110 meter. But to measure the displacement, we just check out the initial and final position. So at the start of motion, it is at origin, and after the completion of journey, in the 10 second, it will be at point B. तो ये आपका क्या हो जाएगा? डायरेक्ट डिस्टेंस, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, एंड दैट इज अ डायरेक्ट डिस्टेंस, सिंपली अ शॉर्टेस्ट पाथ. सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 30 मीटर along minus x axis, and you can just write down displacement is minus 30 meter. minus 30 क्या एक्सप्रेस कर रहा है कि माइनस साइन इंडिकेट द डायरेक्शन इज along the negative x axis direction. So distance is a actual path length traversed by the object in any direction, that is called distance. But the displacement is shortest path between initial and final position of an object, shortest path. And to express the distance, we never required a direction, it only required a magnitude. कोई भी किसी भी डायरेक्शन में जितना भी पाथ उसने ट्रैवल किया, you just add on. But displacement के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो हमें मेजर करना है along with the direction. तो
दैट इज ऑल अबाउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. लेटर ऑन नेक्स्ट क्लास में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को और लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये भी हम डिस्कस करेंगे, बट दैट विल बी इन नेक्स्ट लेक्चर. इज इट क्लियर? दी टेबुलर फॉर्मेट में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस कर लें तो वो भी सुटेबल रहेगा. डिस्टेंस क्या है? इट इज एक्चुअल path length traversed by object in given interval of time. That is called distance, and it is shortest path between initial and final position of an object in a given interval of time. That is displacement. डिस्टेंस जो है वो आपकी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है. जबकि डिस्प्लेसमेंट कैसी है? वेक्टर है. नाउ डिस्टेंस इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. it may be positive or negative or जीरो. आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. ठीक है. डिस्टेंस नेवर इक्वल्स टू जीरो. इट मे बी जीरो. ठीक है. एक पॉइंट हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए और लिख सकते हैं कि इट इज पाथ डिपेंडेंट. डिस्टेंस जो है वो पाथ डिपेंडेंट है कि आपने जैसा पाथ ट्रेवर्स किया है उस अकॉर्डिंग आपकी डिस्टेंस चेंज होती जाएगी. आप जैसे जैसे पाथ चेंज करेंगे यू विल गेट अ न्यू वैल्यू ऑफ डिस्टेंस. बट डिस्प्लेसमेंट इज it is path independent. It depends only initial and final position of the object. What is the shortest path to reach from initial to final position? That shortest path is displacement. वो path dependent नहीं होता है. वो किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है. वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता. ठीक है. सो दैट इज अ टेबुलर डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. नाउ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज मोर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस इज ऑलवेज equals to, that is one of the important point about the distance and displacement. Distance is always greater than or equals to displacement. But now in which condition distance and displacement is equal, or in which condition distance is more than displacement? So whenever the object travel in a same path, when it doesn't change its direction of motion, यदि ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, उसने अपनी मोशन की डायरेक्शन को चेंज नहीं किया है, at that condition distance and displacement will be same. But as the object changes its direction of motion, यानी उसने अपनी मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर लिया, at that situation distance is always greater than displacement. उस कंडीशन में डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी. जैसे ऑब्जेक्ट ने अपनी मोशन का डायरेक्शन चेंज कर दिया, जैसे रिवर्स हो गया है या फिर और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर गया है, तो उस केस में आपका डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा रहेगा. नाउ वी अंडरस्टैंड दिस थिंग बाय टेकिंग अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन. Suppose
ऑब्जेक्ट इज ट्रेवल, या फिर हम ये सेम क्वेश्चन आपकी शायद टेक्स्ट बुक में भी है, टेक्स्ट क्वेश्चन है दैट फार्मर इज ट्रेवल अलोंग अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर in a 40 seconds. In 40 seconds, it completes one revolution. ये स्क्वायर फील्ड है, इस स्क्वायर फील्ड की साइड जो है वो 10 मीटर है, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। इन 40 सेकेंड इट कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन। देन कैलकुलेट distance and displacement of farmer in 2 minutes and 20 seconds. 2 मिनट्स और 20 सेकेंड्स में फार्मर का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो आपको चेकआउट करना है, फाइंड आउट करना है। एक 40 सेकेंड में वो क्या कर रहा है, वन रिवॉल्यूशन पूरा कर रहा है। 40 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 40 मीटर, एक रिवॉल्यूशन पूरा कर रहा है। सो फर्स्ट लेट इट चेक कि 2 मिनट और 20 सेकंड्स में उसने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने किए हैं, वो हम चेकआउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट वी चेक आउट द टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम लिखेंगे इन 40 सेकंड्स नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन by a farmer is 1. Then in 2 minutes and 20 seconds, so how many seconds, 140 seconds। 2 minutes में 120 seconds, 20 seconds और ऐड कर लिए। So in 140 seconds number of revolution by farmer is 1 divided by 40 into 140। so ये 0 0 कैंसिल हो गया, so that is ये हो गया 7, ये हो गया 2, so that is number of revolution is 3.5 revolution। कितने लैप्स पूरे कर रहा है, 3.5 लैप्स, यानी उसने इस स्क्वायर फील्ड के 3.5 राउंड कंप्लीट किए हैं। कितने राउंड कंप्लीट किए हैं, 3.5 राउंड। तो अब हम पहले चेक कर लेते हैं डिस्टेंस। so how can we calculate the distance, that distance traveled by farmer in one revolution में डिस्टेंस कितना होगा, देखिए 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर और 10 मीटर। एक पूरी बाउंड्री को ट्रेवल कर रहा है, स्क्वायर बाउंड्री को, तो कितना रिवॉल्यूशन हुआ, 40 मीटर। सो इन 3.5 रिवॉल्यूशन उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 40 इंटू 3.5। तो कितना हो गया, पहले रिवॉल्यूशन में 40, दूसरे रिवॉल्यूशन में 40 80, तीसरे में 40 120 और फिर 10 और 10 20। तो 40 इंटू 3.5 इट इज 140 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 40 मीटर। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट इन 3.5 रिवॉल्यूशन। नाउ अब चेक करना क्या है, टू चेक आउट द डिस्प्लेसमेंट you just find out the initial and final position of an object। तो कैसे चेक करेंगे, ऑब्जेक्ट यहां से शुरू किया, ये पॉइंट लोकेट कर लिया हमने A, ये B, ये C और ये D। now starts from this point A B C D, one revolution। so displacement initial and final position is same, तो displacement in one revolution is 0, A B C D। second revolution में भी 0, A B C D। third revolution में भी 0। now अब जो हाफ रिवॉल्यूशन बचा, तो यहां से शुरू हुआ और यहां पहुंच गया। सो फाइनल पोजीशन यहां है ऑब्जेक्ट की, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का ये डायरेक्ट डिस्टेंस, ये डायगोनल हुआ। क्या हुआ, दिस डायगोनल शोज द डायरेक्ट डिस्टेंस। ये आपका डायरेक्ट डिस्टेंस हुआ, क्योंकि आपको पहले चेकआउट करना है इनिशियल और फाइनल पोजीशन, और उस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस। एक डिस्टेंस ये है AB plus BC, but it is not a direct distance। Direct distance is AC। तो ये डायरेक्ट डिस्टेंस आप कैलकुलेट करेंगे, तो
this is ABC is your right angle triangle. So in triangle ABC, your AC is square root of AB square plus BC square. So AC is, now AB is square of 10 plus square of 10. So AC is square root of 100 plus 100. So it will be root 200. So the displacement is 10 root 2 meter. So यदि root 2 की वैल्यू रखें 1.414, so it will be 14.14 मीटर. ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ और डिस्टेंस कितना है 140 मीटर. So as the object changes its direction of motion, हर डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या कर रहा है, वो चेंज कर लिया है. तो डिस्टेंस क्या हुआ 140 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट इज ओनली 10 रूट 2 मीटर. सो जो हमने पॉइंट डिस्कस किया कि डिस्टेंस इज ऑलवेज मोर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगा. इक्वल हो सकता है या फिर उससे ज्यादा हो सकता है, कभी भी कम नहीं होगा. इज इट क्लियर? नाउ एक क्वेरी आया आपका कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटीज एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी. तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार मैं रिपीट ऑन कर लेता हूं कि स्केलर क्या होते हैं और वेक्टर क्या होता है. दोज फिजिकल क्वांटिटीज which required only magnitude for their representation. Those physical quantities which requires only magnitude मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू. देखिए जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी आप रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपने लिखा 20 मीटर, तो 20 आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और मीटर उसकी यूनिट होगी. तो जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ इस तरीके का न्यूमेरिकल ही चाहिए. सो दोस फिजिकल क्वांटिटी व्हिच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन आर कॉल्ड स्केलर, and which requires magnitude as well as direction for their representation are called vectors. जैसे स्केलर में हम बताएं मास स्केलर क्वांटिटी है. मास को एक्सप्रेस करने के लिए कभी भी आपको डायरेक्शन नहीं चाहिए. टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ टाइम चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए. लेंथ में आप ये समझ सकते हैं डिस्टेंस इज अ स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर. एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, ठीक है. उसके बाद और एग्जांपल आप लेना चाहें, पावर, वर्क, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ स्केलर. वेक्टर में हम लिखेंगे तो वेक्टर में सबसे पहला जो वेक्टर क्वांटिटी है वो है डिस्प्लेसमेंट. आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे वेलोसिटी. अभी हमें जो पढ़ना है, देखिए स्केलर में हम स्पीड भी लिख सकते हैं. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. उसके बाद एक टर्म आएगी एक्सेलरेशन, इट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है. मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है. तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे जैसे आप फिजिक्स के चैप्टर्स डिस्कस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि विच आर द स्केलर क्वांटिटी, विच आर द वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. बट अभी तक के लिए ये क्वांटिटीज आपको याद रखनी कि ये क्वांटिटीज स्केलर है, ये क्वांटिटीज आपकी वेक्टर. इज दैट क्लियर? ठीक है. मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. मोमेंटम हम जब फोर्स वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे वहां आएगा द अमाउंट ऑफ मोशन पासेस बाय द बॉडी इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम. जैसे जैसे लेटर ऑन हम आगे डिस्कस करते जाएंगे, जैसे जैसे आप चैप्टर्स डिस्कस करेंगे, ये सारी टर्म्स जो मैंने यहाँ लिखी है वो सारी टर्म्स वन बाय वन किसी न किसी चैप्टर में आएगी. ठीक है. now we discuss the third motion parameter, that is the speed. अब देखिए स्पीड और वेलोसिटी जो है
वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप समझें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है। तो सबसे पहला आता है स्पीड। पहले हम स्पीड का डेफिनेशन, उसके क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, देन वेलोसिटी के टाइप्स और क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्पीड इज, इट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट in a unit time। 1 सेकेंड में या यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दैट डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इफ आई एक्सप्रेस दिस इन द एक्सप्रेशन स्पीड को, तो स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो द रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ऐसा यूनिट क्या होगा, देखिए डिस्टेंस का, डिस्टेंस इज द लेंथ, इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर, टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड, तो ऐसा यूनिट फॉर द स्पीड इज मीटर पर सेकंड। कुछ स्टैंडर्ड यूनिट और भी होती है जो हम यूज करते हैं, जैसे किलोमीटर पर आवर। नॉर्मली हम जो न्यूमेरिकल सिचुएशंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो वहां पर कुछ और यूनिट्स भी यूज आएंगी किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये ऐसा यूनिट में नहीं आएगा, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होगी। अदर यूनिट्स में किलोमीटर पर आवर भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इसको प्रेजेंट करने के लिए, इसको एक्सप्रेस करने के लिए वी जस्ट रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड। मीटर पर आवर, मीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो भी आप लेंथ की यूनिट लेते हैं, टाइम की यूनिट जो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, वो सारी ले सकते हैं। बट स्टैंडर्ड यूनिट जो ऐसा यूनिट है, वो ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, और दूसरा जो यूनिट स्टैंडर्ड वाइज यूज आएगा वो आएगा किलोमीटर पर। ठीक है, और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। नाउ वी डिस्कस द इट्स क्लासिफिकेशन, कि इन विच डिफरेंट कैटेगरीज विल बी क्लासिफाइड। तो स्पीड को हम किन किन कैटेगरीज में, 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म स्पीड and non-uniform speed. And non-uniform speed is further classified into 2 categories, that is average speed and more important term that is not in your textbook। normally 9th standard में ये चीज नहीं डिस्कस करते हैं, लेकिन लेटर ऑन जब आप 11th में आएंगे तो ये चीज बताई जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूं, थोड़ा सा बेसिक ही करूंगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड। So non-uniform speed is classified into average speed and instantaneous speed। पहले हम इनको डिफाइन करते हैं कि what is uniform speed, what is non-uniform speed, average speed, instantaneous speed, then later on we discuss their examples। तो uniform speed क्या होता है, speed of an object is said to be uniform if it covers equal distances in an equal interval of time। यानी ऑब्जेक्ट क्या हो, इक्वल स्पीड, इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या करे, इक्वल इंटरवल टाइम है वो इक्वल, uniform speed means speed of an object is said to be uniform if it covers equal distances in an equal interval of time। जैसे फॉर एग्जांपल कि सपोज मैं इस चीज को एक्सप्रेस करूं इस तरीके से, जैसे यहां मैं टाइम ले लूं और यहां द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, एंड हियर वी आर टेकिंग अ स्पीड। सपोज एट द टाइम 0 second, distance traveled by the object is 0 meter, so speed I have taken 0। now after the 5 second, suppose I am saying that the distance traveled by object is 20 meter,
सो द स्पीड क्या होगा, हमें ये टाइम इंटरवल चेक करना है और इस टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर हुआ वो चेक करना है। तो स्पीड क्या हुआ 20 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0, so it will be 20 by 5, that is 4 meter per second. Now next same time interval लिया, in the next 5 second it travel a distance of 40 meter for example. तो next time interval कितना हुआ आपका 40 minus 20, ये इंटरवल लिया 40 minus 20 upon 10 minus 5, so it will be 20 by 5, again 4 meter per second. So the speed of an object is said to be uniform if it covers equal distances in an equal interval of time. मतलब आपका टाइम इंटरवल भी इक्वल है और उस टाइम इंटरवल में जो ट्रैवर्स डिस्टेंस है वो भी क्या है इक्वल है. इट इज आल्सो नोन एज यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट. तो जब भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करेगा, यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करेगा, कांस्टेंट यानी आपकी स्पीड हर बार क्या आ रही है सेम आ रही है. पहले वाले में भी 4 मीटर पर सेकंड आई, नेक्स्ट वाले में भी आपकी स्पीड कितनी आई 4 मीटर पर सेकंड. तो दैट इज अ यूनिफॉर्म स्पीड. इट इज आल्सो डिफाइंड एज अ यूनिफॉर्म मोशन. जैसे आपको डिफाइन करना है व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन. तो यूनिफॉर्म motion of an object is said to be uniform if it cover equal distance in an equal interval of time or when it travel with a uniform speed. So that is called uniform motion. तो इस तरीके से आप यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन कर सकते हैं या यूनिफॉर्म स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. नाउ हाउ कैन वी डिफाइन अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म if it covers unequal distances in an equal interval of time or vice versa. या तो मैं क्या करूं टाइम इंटरवल इक्वल ले लूं और डिस्टेंसेस अनइक्वल ले लूं, या फिर डिस्टेंसेस इक्वल लूं बट टाइम इंटरवल अनइक्वल ले लूं. Then that speed is non-uniform speed. Non-uniform speed is also known as variable speed. जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करेगा तो वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. जैसे इसी टेबल के अंदर मैं ऐसा बोलूं कि ये टाइम इंटरवल मैं सेम ले लूं 0 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड, बट मेरी डिस्टेंसेस अलग अलग है. 0 सेकंड पे 0 मीटर, नेक्स्ट 20 मीटर, उसके बाद मैंने यहां ले ली 60 मीटर, नेक्स्ट 10 सेकंड में मेरी 60 मीटर हो गई. तो यहां आप टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा सेम है बट डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो देखिए 60 minus 20 upon 10 minus 5, that is 40 by 5. तो स्पीड इज 8 मीटर पर सेकंड. नाउ पहले वाले केस में स्पीड आया 4 मीटर पर सेकंड, सेकंड वाले केस में आपका स्पीड आया 8 मीटर पर सेकंड. सो ऑब्जेक्ट ट्रेवल विद अ वेरिएबल स्पीड, सो दैट स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड वेरिएबल स्पीड से ट्रैवल कर रहा है. तो जब भी आपका स्पीड क्या होगा वेरिएबल होगा, देन वेरिएबल स्पीड को फर्दर हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड. जब भी आपकी ऑब्जेक्ट की वेरिएबल स्पीड होगी तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे एवरेज स्पीड. तो हाउ कैन वी डिफाइन एवरेज स्पीड. सो एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस upon total time taken. That ratio is called average speed. ये रेशियो क्या बोला जाएगा एवरेज स्पीड. तो अब हमने उस टेबल के अंदर जो टेबल बनाई है जिसमें नॉन आपकी डिस्टेंस जो है वो अलग अलग है. तो टोटल डिस्टेंस यहां देखिए 60 मीटर है और टोटल टाइम आपने क्या लिया 10 सेकेंड. तो 60 by 10, टोटल डिस्टेंस 60, टोटल टाइम 10, तो इट विल बी 6 मीटर पर सेकेंड. या इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि पहला इंटरवल का स्पीड आपका आया 4, दूसरे वाले इंटरवल का आया 8, तो 8 plus 4 by 2 एवरेज ले लिया, सो इट विल बी 12 by 2, दैट इज 6 मीटर पर सेकंड. बट ये सारी सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा. एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट रेशियो इज कॉल्ड एवरेज स्पीड. द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टोटल टाइम टेकन, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड. Next is instantaneous speed. Important term है. The speed of an object at a particular time instant,
दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। हमारी जो टू व्हीलर फोर व्हीलर व्हीकल के अंदर जो ऑडोमीटर लगा रहता है जो स्पीड मेजर करता है, ठीक है, आजकल आपने देखा होगा डिजिटल मीटर भी लगे हैं, एनालॉग मीटर है, डिजिटल मीटर में एग्जैक्ट स्पीड बताता है 20.5 80.3, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो व्हीकल का जो ऑडोमीटर होता है वो क्या ट्रैवर्स करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या करता है, ट्रैवर्स करता है। इज दैट क्लियर? तो हाउ कैन वी डिफाइन अ इंस्टेंटेनियस स्पीड? हाँ, लास्ट नंबर क्यों है, क्योंकि ये हमने डिस्टेंस लिया है ना कि हर टाइम इंटरवल का कितना डिस्टेंस हुआ वो ट्रेवल किया है, कि 10 सेकंड में इसने 60 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस 60 है। ये ऐसा नहीं है 60 प्लस 80, ऐसा नहीं करेंगे, ये हमारा टेबल उसी अकॉर्डिंग फॉर्म हुआ है। तो एवरेज स्पीड हुआ रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, एंड instantaneous speed is a speed of an object at a particular time instant, that is called instantaneous speed। वो क्या होगा, instantaneous speed। so that is a classification of speed: uniform speed, non-uniform speed, average speed and instantaneous speed, ठीक है। सिमिलरली यही सेम क्लासिफिकेशन वेलोसिटी का रहेगा। वेलोसिटी का क्लासिफिकेशन जो है उसके क्लासिफिकेशन में चेंज क्या आएगा, डिस्टेंस की जगह आपका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। दैट वी हैव डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? सो दैट इज ऑल अबाउट फॉर द टुडेज लेक्चर।